Hello students, we are going to start physics class 10 chapter 1 electricity. In class 10 we have two chapters for electricity, that is electricity, and the other one is magnetic effects of electric current. To understand magnetic effects, obviously we must understand electricity first. So we are starting with electricity. Now before we start the main topics like electric potential, potential difference, electric current, Ohm's law, resistance, and there are so many other topics. Before starting those topics, we must understand the basic terms first, like what exactly electricity mean, what are charges, what are type of charges. So we are starting with the electricity first. कि electricity exactly क्या होता है, like electricity word सभी यूज करते हैं, but many few people know the exact meaning of electricity. बाकी लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, वोल्टेज, पावर, सब इलेक्ट्रिसिटी ही है. बट यू पीपल एज ए स्टूडेंट obviously will have to understand the difference between electric potential, potential difference, current, resistance, power. Everything is different. They have their own meaning and their own role in electricity. So we must first define electricity. It is the presence and flow of electric charges, like चार्जेस का प्रेजेंट होना और चार्जेस का फ्लो होना. चार्ज हो सकता है चार्जेस प्रेजेंट हो, फ्लो नहीं हो रहे हो सकता है चार्जेस प्रेजेंट हो, फ्लो भी हो रहे हो. ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आएगा कि चार्जेस फ्लो होते हैं तो क्या होगा, चार्जेस रेस्ट में है तो क्या होता है. राइट नाउ द डेफिनेशन इज इट इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत से टाइप्स हो सकते हैं, जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते हैं, वो चार्जेस हैं. बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करेंगे. जब भी हम चार्ज बोलेंगे इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन रेफर कर रहे हैं. सो इट इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, इन वन डायरेक्शन. अब डायरेक्शन पढ़ेंगे अलग टॉपिक में कि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है या पॉजिटिव से नेगेटिव. बट इस डेफिनेशन में अब वी आर टेकिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल्स पे होते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होंगे. So it is the presence and flow of electric charges, that is electrons, from negative to positive direction. The other point is we can consider electricity as a form of energy which we use to power machines and all other electric devices. Nowadays जितने भी devices हैं almost सब electrical devices ही हैं, and without electricity there's obviously they will not be operated. मतलब meaningless हो जाएंगे electricity नहीं होगा तो. So electricity is very important. It has wide variety of applications. Nowadays especially everything is being run on electricity only. Electricity नहीं है, all the machines are worthless. Like this DSLR camera, fan, lights, AC, washing machine, सब कुछ electricity पे run करना है. No electricity, no use of these machines. So for powering machines and using other electrical devices, we need electricity. So it is very useful. Now let's discuss about types of electricity. The first one is static electricity. As the name suggests, static, it means the charges, that is electrons, are at rest. Charges हैं but move नहीं हो रहे हैं, rest में है तो static है. और अगर charges move होते हैं current electricity में, it is the flow of electric charges across an electric field. अब यहाँ पे एक नया term है electric field. इसके बारे में डिटेल 10th में नहीं है. In higher class, like in class 12, you will study in detail about electric charges. Electric charges, electric field, there are so many things. But 10th में this is not so important. but ठीक है, मेंशन किया है तो डिफाइन कर देंगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द चार्जेस आर एट रेस्ट, दे आर नॉट मूविंग. करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द चार्जेस आर इन मोशन, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मतलब चार्जेस मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहें या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहें एक ही बात है. यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहें या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहें एक ही बात है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम रब करके बनाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से बनाते हैं. टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करके, एंड ऑब्वियसली रबिंग की वजह से बना रहे हैं या फ्रिक्शन की वजह से बना रहे हैं. therefore it is termed as frictional electricity also. Static electricity, electrostatics और frictional electrostatics. यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कह लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स.
Now let's study about electric charges. So there are so many definitions of charges, like it is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in electromagnetic field. ये इसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कह सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कह सकते हैं. अब मेनी ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या है. द वर्ड इंट्रिंसिक मीन बेसिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो अंदर होता है, मतलब बाहर जो उसको नहीं मिला है वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है. तो चार्जेस भी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं. ये सारे तरीके हैं डिफाइन करने के इलेक्ट्रिक चार्जेस को. नाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस का ओरिजिन क्या है, कैसे मालूम पड़ा हमें कि चार्ज जैसा भी कुछ होता है. सो यू मस्ट हैव स्टडीड यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन इन क्लास 9th. यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन इन द ग्रेविटेशन चैप्टर कि दो बॉडीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. लाइक दो बॉडीज हैं, उनका मासेस है m1 m2, उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है r, तो उनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा जिसका फॉर्मूला है F = G कैपिटल G m1 × m2/r². ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है. बिकॉज ऑफ मास, उन दोनों में मासेस थे, इसलिए मास की वजह से जो उनके बीच में फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था. एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव होता है. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैन नेवर बी रिपल्सिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. लेकिन ये नोट किया गया कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर दूर रखें तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से उनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा. फाइन. बट इट वॉज नोटिस्ड कि इलेक्ट्रॉन्स में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखें तो अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में एक और फोर्स लग रहा था जो उन दोनों में रिपल्शन कॉज कर रहा था. एंड दैट फोर्स वॉज इलेक्ट्रिक फोर्स. So like gravitational force was caused due to masses, therefore जो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगा that is because of their charges. मतलब यहाँ से चार्ज का कह सकते हो ओरिजिन आया कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस मासेस की वजह से होते हैं, तो जो दूसरा फोर्स जिसकी वजह से उन दोनों में रिपल्शन हुआ that is चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगा. और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, वो देखेंगे बाद में. लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे. बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, दे कैन नेवर बी रिपल्सिव. फाइन. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस वर डेवलप्ड. इस तरीके से चार्ज की बात सामने आई कि मैटर में अपार्ट फ्रॉम मास देयर कैन बी वन मोर प्रॉपर्टी, इट इज चार्जेस. नॉट ऑल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड. बहुत सारे न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ मास होता है, तो उनमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. बट वो पार्टिकल्स जिनमें मास तो सब में होगा, मैटर है तो मास होगा ही. ऑल द मैटर का डेफिनेशन पता है आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे हो. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, तो मास सब में है. लेकिन कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज होते हैं, मतलब उनमें चार्जेस भी होंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अलग बात है. लाइक जनरली एलिमेंट्री पार्टिकल्स में पता है आपको कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल हैं, उनमें चार्ज नहीं है, सिर्फ मास है. फाइन. सो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्जेस का. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, कुछ भी कह सकते हो. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव, नेगेटिव. अब पॉजिटिव नेगेटिव सुन के हमें सबसे पहले ऐसा फील आता है कि पॉजिटिव कुछ ज्यादा होगा, नेगेटिव कुछ कम होगा. इस पॉजिटिव नेगेटिव का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है. कोई चार्ज पॉजिटिव है दैट डजंट मीन कि वो ग्रेटर है, या नेगेटिव है तो कम है. ये सिंपली नेम है, आउट ऑफ कन्वेंशन नाम दे दिया गया है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. लाइक लेट्स डिस्कस सम एक्सपेरिमेंट. बहुत सारे ऐसे पेयर्स होते हैं, जैसे ग्लास रॉड है और सिल्क है, या प्लास्टिक कॉम्ब है, ड्राई हेयर है. देयर आर सो मेनी पेयर्स. अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे, इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे, कोई चार्ज नहीं था दोनों में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे. स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है आपको, सबको पता होगा ये. जब इन दोनों को आपस में रब करेंगे तो ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंटली कि ग्लास रॉड विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड सिल्क क्लॉथ विल गेन इलेक्ट्रॉन. तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड. या ऐसे कह सकते हैं कि ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप हुआ उसको पॉजिटिव नाम दे देते हैं, सिल्क में जो चार्ज डेवलप हुआ उसको नेगेटिव कह लेते हैं.
सिमिलरली ये बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है प्लास्टिक कॉम और ड्राई हेयर का, हम सब कर सकते हैं। प्लास्टिक कॉम इज अवेलेबल टू एवरीवन एंड ड्राई हेयर, वेट हेयर नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए हेयर में। अगर प्लास्टिक कॉम को ड्राई हेयर में रब करते हैं तो अगेन ड्राई हेयर विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड प्लास्टिक कॉम विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो ड्राई हेयर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड प्लास्टिक कॉम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर प्लास्टिक कॉम को अगर आप छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर से, अब कोई इतना स्ट्रांग नहीं हो जाएगा कि ज्यादा अट्रैक्शन करे, तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास प्लास्टिक कॉम लाओगे तो प्लास्टिक कॉम विल अट्रैक्ट दो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। इट मीन्स इट हैज चार्ज नाउ। जो पहले न्यूट्रल था, आफ्टर रबिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन चार्ज हो गया ये, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो, जो हम रब करके बनाते हैं। सो ये है टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट वन इज units of electric charge. So the unit of electric charge is coulomb, named after Charles Augustin de Coulomb. यहाँ पे जो ध्यान रखना है हमें, अगर हम coulomb पूरा लिखते हैं तो C has to be small, क्योंकि अगर C कैपिटल से स्टार्ट करें coulomb, it will mean the name of the scientist after whom it is named. जितने भी यूनिट्स साइंटिस्ट पे नेम्ड होते हैं उनके पूरे नाम में द फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। अगर आप सिर्फ सिंबल लिखते हो तो सिंबल कैपिटल होना चाहिए, पूरा कूलम लिखते हो तो सी स्मॉल होना चाहिए। ये सब पे अप्लाई होता है। कूलम, जूल, वॉट्स, जितने भी नाम साइंटिस्ट नाम पे रखे हुए हैं, जितने भी ऐसा यूनिट्स, सब पे ये अप्लाई होगा। सो ऐसा यूनिट इज कूलम, जो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम पे रखा गया है। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन कूलम? वन कूलम हम डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक करंट से भी डिफाइन कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा ही नहीं हमने, तो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले से डिफाइन नहीं करेंगे। वी आर सिंपली एक सिंपल तरीका देखो डिफाइन करने का, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, सबको पता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये 9th में पढ़ा है आपने, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है, ऑब्वियसली दिस चार्ज इज वेरी स्मॉल, द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁻19 है। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें जो एक कूलम चार्ज बनाए, सिंपल बाय यूनिटरी मेथड, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो एक कूलम चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए इस पूरे नंबर को यहाँ ले आओ 1 के नीचे। मीन्स अगर 1 को इस नंबर से डिवाइड करोगे एंड माइनस इग्नोर कर दिया है हमने, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रूल नहीं है। सो इफ यू डिवाइड 1 बाई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 6.25 इंटू 10⁻18 एक कूलम चार्ज बनाएंगे। सो 1 कूलम इज अ वेरी बिग नंबर अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो। नाउ कुछ दूसरे यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, बिगर यूनिट जनरली हम यूज नहीं करते हैं, बट फिर ये बता दिया है मैंने क्योंकि बाकी दूसरे यूनिट्स में भी काम आएंगे ये। किलो, कूलम, मेगा कूलम, गीगा कूलम। तो ये जो किलो, मेगा, गीगा का मतलब है ये हर जगह सेम रहेगा, चाहे यहाँ कूलम हो, जूल हो, मीटर हो, लीटर हो, कुछ भी हो। सो 1 किलो कूलम इज इक्वल टू 1000 कूलम्स, 1 मेगा कूलम इज इक्वल टू 10⁻6, 1 गीगा कूलम इज इक्वल टू 10⁻9 कूलम्स। These units are not used, these units are used, smaller units. 1 milli coulomb, again the word milli and micro, इनका मतलब सेम रहेगा, चाहे कूलम के लिए हो, जूल्स के लिए हो, वॉट के लिए हो, मीटर, लीटर, ग्राम, किसी के लिए भी हो। So 1 milli coulomb means 1/1000 means 10⁻³ coulomb. 1 micro coulomb means 10⁻⁻6 coulomb. ये स्मॉलर यूनिट्स हैं, जनरली हम ये वाले यूनिट्स यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में। ये बड़े यूनिट्स हैं, इतना चार्ज होता भी नहीं है प्रैक्टिकली यूज करने के लिए न्यूमेरिकल्स वगैरह में। सो दीज आर द यूनिट ऑफ चार्ज, मीनिंग ऑफ 1 कूलम एंड अदर यूनिट्स ऑफ कूलम, बिगर यूनिट्स एंड स्मॉलर यूनिट्स। ऐसा यूनिट तो कूलम भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। The first one is charges are additive in nature. It simply means कि चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। अगर इस सिस्टम में 2 या मोर देन 2 चार्जेस हैं, लाइक 3 चार्जेस, 10 चार्जेस, कितने भी चार्जेस हों, उनको आप सिंपली ऐड कर सकते हो, सिंपली ऐड, अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, दे कैन बी एडेड टू फाइंड टोटल। देन अ चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। इट सिंपली मीन्स कि चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उनको सिर्फ अगर आप करते हो आपस में तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं,
क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, इट इज कंजर्व्ड। देन चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटीज। द वर्ड स्केलर, इसका मतलब सबको पता होगा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द फॉर्मूला इज Q is equal to N into E. Q means quantity of charge, N means number of electrons and E का मतलब है charge of electron। ये वैल्यू पता है सबको। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्जेस को, मतलब चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्जेस को आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E में शो कर सकते हो। लाइक यहाँ पे E है, दिस इज द वैल्यू ऑफ E एंड N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑब्वियसली नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी। तो जो Q होगा वो आइदर ये आएगा या इसका डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, 4 गुना आएगा, 10 गुना आएगा, 20 गुना आएगा। इसी का E का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज। मतलब चार्जेस कभी भी इस वैल्यू का फ्रैक्शन नहीं हो सकता या इसकी डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती। इसका 1 टाइम 2 टाइम 10 टाइम वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ N को E से मल्टीप्लाई करेंगे और Q आएगा। दिस मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस क्वांटाइज्ड हैं, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E आएंगे। फाइन।